Hello everyone. Today's our topic is classification of polymer. In last lecture we have studied about the introduction of polymer. Okay. Now we have to see the classification of polymers. In last lecture we are seen the classification of polymer as a tree diagram. Now we are studying this in briefly. Okay, first of all, this classification is based on the source. Okay, polymers are divided into three categories on the basis of source or origin, that is natural polymer, synthetic polymer and semi-synthetic polymer. First of all, we see the natural polymers. Natural polymers are the polymer which are obtained from natural sources and are said to be a natural polymers, and they are further classified as plant polymer, and animal polymer. What? Animal polymer. So name itself indicate that plant polymer means the polymers which are derived from the plants. For example, cotton, linen, which is obtained from plant, and flax plant respectively. Natural rubber is the example of natural polymer which is manufactured from latex obtained from bark of rubber trees. Then after that, plant polymer, animal polymer. Second type is animal polymer. So these are derived from the animal sources and this is known to be animal polymers. For example, wool is obtained from hair of sheep, silk is obtained from silkworm, and these are the examples of the polymers. So this is all about the natural polymer. सो नेचुरल पॉलीमर नेचर से ऑब्टेन होता है, वो क्लासिफाइड होता है एज अ प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर. आफ्टर दैट वी सी द synthetic polymer. Okay, synthetic polymers are the polymers which are man made, which is artificially prepared by polymerization of one of the monomer or copolymerization. The example of these synthetic polymers are neon, terylene, neoprene, etc. These are the example of the synthetic polymer. And last one of the polymer is semi-synthetic polymer. Okay. Semi-synthetic polymer. Semi-synthetic polymers are naturally occurring polymers and which is chemically modified, that is known to be semi-synthetic polymer. That's example is vulcanized rubber. As well as the example of the semi-synthetic polymers are cellulose acetate rayon, cellulose nitrate, viscous rayon, cuproammonium rayon. These are the few examples of the semi-synthetic polymers. Okay, this is the classification based on the sources. Okay, then next classification. So based on the structure, these polymers can be classified as linear polymer, branch polymer, cross-link polymer and network polymer. So this name itself indicates that linear polymers means the molecules forms a long chain without branches, means it's a linear form. This is the image for the linear polymer. Here the monomers are arranged in linear manner. Okay. So here when monomer molecules are joined together in a linear arrangement, this result the polymer as a straight chain. Okay, this is obtained from bifunctional monomers or alkane, and the example of this linear polymers are PVC,
high density polythene, etc. Okay, in the branch chain polymer, here molecules having branch point. These are the branch points, okay, that connect three or more segment. Okay, in this branch point three or more segments are connected, and the example of this branch polymer is low density polymer. Okay, then third one is the cross-link polymer. Okay, in this cross-link polymers, this is the third type of arrangement, and it is said to be cross-link or network polymer, where cross-link are produced between the linear chain as shown in figure. Okay, here in the linear chain, there are some interconnection between these chains, and that is known to be cross-link polymer. And the example of the cross-link polymer is bakelite, melamine, etc. Network polymer. In this, it is again a type of cross-link polymer. Likewise, cross-link polymer that include numerous interconnection. Okay, here there are numerous interconnections. In your textbook, this polymer is not included, but it is also this cross-link polymer, when having numerous interconnections, then it is known to be network polymer. The example of this network polymer is bunion. Okay, these are the polymers which are classified on the basis of the structure. Then again, one is classification is based on the molecular forces. Okay, in this classification, the mechanical properties of polymers such as tensile strength, toughness, elasticity differs widely depending upon the intermolecular forces. Okay, as the intermolecular forces are in the polymers, they are being classified into various categories. The first category of them is elastomer. Elasticity is the property which a substance get stretched by the external forces and restored it the original shape and release that force. Okay, students, sometimes we see the elasticity in rubber. Okay, so here when we stretch by external force, then it can expand their size or stretch, and when we release that force, then what happen, again it can restore their original shape. Means जब भी हम कोई रबर लाइक सब्सटेंस या इलास्टोमर्स को हम यूज़ करते हैं या फिर उसको एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस, तो क्या होता है, वो खुद को एक्सपांड करता है या फिर स्ट्रेच करता है. बट हम जब भी वो फोर्स को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं या फिर उसमें फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो ये रिगेन कर लेता है या रिस्टोर कर लेता है अपनी पहले की साइज़ है या फिर शेप है उसको. ओके, अब ये होता किस वजह से है, वाई दिस इज हैपन, बिकॉज ऑफ द वीकेस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. सो दैट it having weakest intermolecular forces, it is known to be elastomers, and it can stretch easily and can form their or restore their original shape and size. And the example of this elastomer is natural rubber, Buna S, Buna N, etc. The weak binding forces permitted the polymer to be stretched. Why this elastomers are stretched? Because of the weak binding forces. Okay, second type of the classification is fiber. Okay, so fibers are the polymeric solid which can form thread like structure, that is called as fibers. The fiber possess high tensile strength, which is the property to have resistance to breaking under tension.
This characteristic is due to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding and the strong dipole-dipole forces. So here student, जो फाइबर होता है, फाइबर में जो बाइंडिंग होती है या फिर इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. उसके बाद में जो उसके फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस हैज़ रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग अंडर द टेंशन. ओके, सो ये इजीली ब्रेक नहीं हो पाते. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किस वजह से है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस. और इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से क्या होता है, ये फाइबर जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर फॉर्म करते हैं. और उसी की वजह से उसको हम इट कैन बी वोवन इनटू फैब्रिक्स. इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक्स में यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस इज थ्रेड लाइक एंड वोवन इनटू फैब्रिक्स. These are widely used for making cloths, nets, ropes, gauges, and etc. Fiber possess high tensile strength because of the chain possess strong intermolecular forces such as hydrogen bonding, as I say. Okay, सो हम फाइबर्स को रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं. यहाँ पर मैंने आपको इलास्टोमर का एग्जांपल दिया है, दिस इज़ इलास्टोमर. और फाइबर का एग्जांपल दिया है यहाँ पर ये जो ब्रशेस है, हम जो भी कुछ ब्रशेस यूज़ करते हैं जिसमें प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द फाइबर. ओके, हियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, 2 मार्क्स के लिए हो सकता है मे बी, राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइबर्स एंड इलास्टोमर्स. बिकॉज ये जो इलास्टोमर्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ फाइबर के प्रॉपर्टीज़ से अपोजिट है. ओके, इलास्टोमर्स में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है, वीकेस्ट है. और फाइबर्स में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो कैसे है, स्ट्रॉन्ग है. फाइबर्स को हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें और वोवन कर सकते हैं इनटू फैब्रिक्स. बट इलास्टोमर्स कांट वोवन इनटू फैब्रिक्स. ओके, इलास्टोमर्स हैव रबर लाइक स्ट्रक्चर, रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर्स. ओके, and it has elasticity, but fiber doesn't has elasticity. Okay, and its applications are very different from each other. So remember that both of the polymers and difference between these polymers, and the difference can make your study very comfortable. जब हम किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो चीज़ें जल्दी ध्यान में आती है. ओके, सो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. हमने सिर्फ इलास्टोमर पढ़ा है और फाइबर पढ़ा है. इसके बाद में अगेन 2 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग्स. ओके, तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या है और थर्मोसेटिंग्स क्या है. स्टूडेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग्स. मोस्ट ऑफ द टाइम you have to write down the difference, you have to ask in your you have to write down in your examination when your question is like that, write the difference between thermoplastic and thermosettings. And this is very important, which will be asked in your examination, which is I am telling very confidently, very surely, this will be asked in your examination. This is very important topic, thermosettings and thermoplastic, and the difference between these two polymers is also very important. You have to surely understand that things, and
remember that things. And again, don't miss this question in your examination because it's very easy concept, and you can easily understood that. Underst- Understood not, you can easily stand that. Okay, so now thermoplastic and thermoset. थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेट्स क्या होता है, मैं आपको एक इजी कंसेप्ट में समझा देती हूँ कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो रीमोल्ड हो सकता है. ओके, इट कैन बी इजीली शेप्ड एंड री मोल्डेड. ओके, बट थर्मोसेट क्या होता है, वो मोल्डेबल नहीं होता है, रीयूजेबल नहीं होता. सबसे पहला डिफरेंस इसका ये है. थर्मोप्लास्टिक को हम बाय हीटिंग और बाय कूलिंग उसको ओवर एंड ओवर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग्स को यूज़ नहीं कर सकते. उसके बाद में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक में मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट इन केस ऑफ थर्मोसेटिंग्स क्या होता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जब भी हम इसको मोल्ड करते हैं तो ऐसे समय में क्या हो जाता है, ये सेट हो जाता है या हार्डनिंग हो जाता है. मीन्स इसमें जो ये है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़े समवॉट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक. उसके बाद में थर्मोप्लास्टिक क्रॉसलिंक पॉलीमर नहीं है, बट थर्मोसेट्स जो है वो क्रॉसलिंक पॉलीमर है. और साथ में इसमें कई सारे डिफरेंस है जो कि हम पढ़ेंगे इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड एंड मोल्डेड. प्लास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी है. हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थर्मोप्लास्टिक को पढ़ रहे हैं. ओके, thermoplastic polymers are capable of repeated softening on heating and hardening on cooling. This polymer possess moderately strong intermolecular forces that are intermediate between elastomers and fibers. ओके, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि इंटरमीडिएट है इन बिटवीन द इलास्टोमर्स एंड फाइबर. मीन्स ये ज़्यादा इलास्टिक भी नहीं होता है और ऐसा भी नहीं है कि फाइबर जैसा है जिसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी ना हो. इट्स समवॉट इलास्टिक, लिटिल बिट इलास्टिक. ओके, ये जो प्लास्टिक है ये क्या होता है, सॉफ्टन होता है बाय हीटिंग एंड हार्डन बाय कूलिंग. और इसके साथ साथ क्या होता है, सॉफ्टन बाय हीट ओवर एंड ओवर अगेन. अगर हम उसको हीट करते हैं, उसको कूल करते हैं, तो हम इसको अगेन एंड अगेन सॉफ्ट कर सकते हैं. ओके, थर्मोप्लास्टिक्स आर नॉट लिंक क्रॉसलिंक पॉलीमर. ओके, ये क्रॉसलिंक पॉलीमर नहीं है. सो इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स कौन से वाले हैं, पॉलीथीन है, उसके बाद में नायलॉन है, उसके बाद में क्या है, पॉलीविनिल क्लोराइड है. ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक्स के. ओके, उसके साथ में पॉलीस्टायरीन भी इसका एग्जांपल है. हम जो प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हैं, उसके बाद में जो चेयर पे हम बैठते हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक्स है. ओके, दिस इज़ थर्मोप्लास्टिक्स. अब थर्मोसेटिंग्स क्या होते हैं, थर्मोसेट्स क्या है. ओके, तो हम अब पढ़ेंगे थर्मोसेट्स. ओके, thermosets having property of becoming permanently hard and rigid when heated. देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नाम है वो इटसेल्फ इंडिकेट करता कि वो क्या है. यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक है तो थर्म बोले तो हीट और प्लास्टिक बोले तो प्लास्टिसिटी. मीन्स क्या हो रहा है, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें प्लास्टिसिटी गेन हो रही है. ओके, मीन्स प्लास्टिसिटी होने की वजह से अगेन एंड अगेन हम उसको क्या कर सकते हैं, रीमोल्डेड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, थर्मोसेट. इसका मीनिंग यही पे छुपा हुआ है कि हम जब भी इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे और कूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, जिसको हम रीमोल्ड नहीं कर पाएंगे. ओके, सो ये थर्मोसेट्स.
Thermosets are hard and rigid at room temperature and do not soften on heating. So जब हम इसको मतलब थर्मोसेट्स को क्या करेंगे, जलाएंगे, तो उस वक्त में ये क्या होगा, हीट करने के बाद में भी सॉफ्टन नहीं होगा. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ दिस थर्मोसेट्स आर इपॉक्सी रेजिन, फिनोलिक रेजिन, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर रेजिन. ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है थर्मोसेट्स के. तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैसे है, रिजिड पॉलीमर है, उसके साथ में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड ऑन हीटिंग एंड गेट हार्डन while hot. Okay, it becomes infusible and cannot soften by heating and therefore cannot be remolded, and the characteristic result of extensive cross linking by covalent bond, it forms in the mold during hardening and setting. Okay, and the example of this thermosets you have to understand and remember that it's epoxy resin, phenolic resin, unsaturated polyester, then again bakelite, urea, formaldehyde are the example of the thermosets polymer. This is all about the thermoplastic and thermosetting. So here your classification based on the molecular forces is completed. Then again the polymers are further classified as by on the basis of the polymerization process. जो भी कोई पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है उसमें जो पॉलीमर्स है वो क्या हुआ है, क्लासिफाई हुआ है. तो मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन इसका कैसा है, उस पर ये पॉलीमराइजेशन बेस्ड है. So the polymerization is a fundamental process by which low molecular mass compounds are converted into high molecular weight compound by linking together of repeating structural unit with covalent bond. So ये जो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो मोनोमर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से एंड कैन फॉर्म द पॉलीमर्स. सो इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो कनेक्ट होंगे एंड लार्ज मॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, फॉर्म होगा. एंड दिस प्रोसेस इज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. सो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, ओके. इसमें दो टाइप्स है. फर्स्ट टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अभी आपके सिलेबस में और एक टाइप इंक्लूड हो चुका है. फर्स्ट मतलब पहले इसमें दो ही टाइप थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बट योर सिलेबस इंक्लूडेड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन. सो first of all we see the addition polymerization and condensation polymerization. So addition polymerization is a process in which monomer molecule bond to each other without a loss of any other atoms. एडिशन आपको सिंपली एक एडिशन हमको पता है कि एडिशन मीन्स क्या होता है, कोई भी यूनिट्स की क्या होती है, एडिशन होती है. तो इसमें यूनिट्स नहीं है, जो मोनोमर्स है उसकी क्या होगी, एडिशन होगी विदाउट लॉसिंग एनी एटम्स. इसमें जो रिएक्शन होगी तो उसमें दोनों मॉलिक्यूल्स जो होंगे या मोनोमर्स होंगे वो ऐड होंगे, लेकिन उसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. दैट इज़ नोन टू बी एडिशन पॉलीमर्स. अल्कीन मोनोमर्स आर द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स इन दिस क्लास. सो हमने देखा था कि इथीन मॉलिक्यूल है वो पॉलीमराइज हो रहा है, उसके पॉलीथीन फॉर्म हो रहा है, लेकिन जब भी पॉलीथीन फॉर्म होता है तो किसी भी तरह का बाय प्रोडक्ट वो फॉर्म नहीं करता.
सिंपली उसमें ऐड होते जाते हैं मोनोमर, एक दूसरे से लिंक होते जाते हैं और ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो मेनली यहाँ पे बात ये होती है, जब भी रिएक्शन होती है बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करती है। और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, हियर two different kind of monomer combine to each other and can lose one molecule, usually waters। तो इसमें रिएक्शन में, कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं और पॉलीमर फॉर्म करते हैं, तो ऐसे समय में एक सिंपल सा मॉलिक्यूल लाइक वाटर H2O या फिर एक सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पे रिलीज होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर जाता है। सो दैट इज़ नोन टू बी कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर टोटली अपोजिट है एक दूसरे से। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, एक ही तरह के मोनोमर जो है वो लिंक होते जाते हैं और वहाँ पे कोई किसी भी तरह का बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर में टू डिफरेंट टाइप के मोनोमर अटैच होते हैं और वन ऑफ द काइंड ऑफ सिंपल बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है और वो लॉस होता है। ओके, पॉलिएस्टर एंड पॉलीअमाइड आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ पॉलीमर्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये दोनों प्रोसेस है उसको डीपली भी स्टडी करेंगे, लेकिन ये इन नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम मतलब ब्रीफली स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक और आपको दिया हुआ है, थर्ड क्लासिफिकेशन इज रिंग ओपनिंग। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इट्स अ थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन is a ring opening polymerization. Then cyclic compound is like a lactam, cyclic ethers, lactones etc are polymerized by ring opening polymerization. Strong acid or base catalyze this reaction। ओके, हियर जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन है, आपको नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग को ओपन किया जा रहा है। मीन्स यहाँ पे साइक्लिक एक कंपाउंड रहेगा, साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ में हम रिएक्ट करेंगे इसको स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में इसको क्या होगा, इसकी रिएक्शन होगी और कैटालिसिस होगा, तो कैटलाइज होगी ये रिएक्शन और इसका जो रिंग होगा वो रिंग क्या होगी, ब्रेक होगी एंड दैट इज नोन टू बी रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। इसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर्स। ओके, यहाँ पे हमने डिफरेंट बेसिस लिए हैं जिसके बेस पे एक क्या हुआ है, क्लासिफिकेशन। Here again one more classification is here, that is the classification of polymer on the basis of biodegradability। okay, biodegradability means क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होता है, मीन्स बायोडिग्रेडेबल बोले तो डिग्रेड हो जाएगा वो, मतलब उसका विघटन टाइप, मतलब नष्ट हो जाएगा वो। बायोडिग्रेडेबल जो है मटेरियल मीन्स कुछ ऐसे मटेरियल है जिसका एनवायरनमेंट से उसमें कोई असर नहीं होता और वो डिग्रेड नहीं हो पाते। सो वो जो मटेरियल होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, वो थोड़े हजार्डस होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला था कि पॉलीथीन बैग्स जो है वो यूज़ ना करें, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं था। बायोडिग्रेडेबल ना होने की वजह से एनवायरनमेंट में वो ख़त्म नहीं हो पाता था। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, पॉलीमर का एक टाइप में मीन्स कचरा जो होता है या फिर वेस्ट जो होता है वो तैयार होता है, जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करता है, अफेक्ट करता है। सो दैट मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलीमर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय माइक्रोब्स। सो ये जो बायोडिग्रेडेबल अगर नहीं होते हैं पॉलीमर तो वो अफेक्टेड नहीं हो पाते, मीन्स अनबायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स।
या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स। These are called as नॉन बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स, मीन्स उसका माइक्रोब से उसमें कोई अफेक्ट नहीं हो पाता, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। और जिसको अफेक्ट होता है माइक्रोब से और जो चीज़ ख़त्म हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स। ओके, these in the form of waste material we stay in the environment very long time and pose pollution hazard। तो ये क्या करते हैं, वेरी लॉन्ग टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं और क्या पजेस करते हैं, पोल्यूशन हजार्ड पजेस करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स इन contrast are biodegradable। In attempt to tackle with environmental problems, scientists have developed biodegradable synthetic polymers। More detail will be described in this section। ओके, सो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो माइक्रोब से अफेक्टेड होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हुए, और माइक्रोब से जो अफेक्ट नहीं हो पाते वो डिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स हुए या फिर डिग्रेडेबल माइक्रोब्स हुए। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी बायोडिग्रेडेबिलिटी। अब हम इसको इन डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।